میری خالہ کی بیٹی تھی، وہ بہت حسین تھی، اس کے پیچھے بہت لڑ کے پاگل تھے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا پر میری شادی اس کی بڑی بہن سے ہو گئی۔ وہ کالی تھی، مجھے اس سے نفرت تھی، لیکن جب بھی شبنم ہمارے گھر آتی میں اسے باہر گھمانے لے جاتا۔ ایک دن گھمانے کے بہانے اسے ہوٹل پر لے گیا اور نیند کی گولی دے کر شبو کے پیچھے ہر لڑکا ہی پاگل ہوا جاتا ہے۔ میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تم کہاں تک اس کے پہرے دو گے افضل؟ جن لڑکیوں کو ہر مرد کی نظر میں آنے کی عادت ہو پھر وہ کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ امی کی بات سن کر میں پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا اس کا یہ مطلب تھا کہ پھر اب میرے لیے کالی کلوٹی نیلو کا رشتہ مانگ لائی؟ میں تو اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ میں اس گھر میں فقط شمینم کو ہی اپنی بیوی بنا کر لاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میرے پاس شبنم کا نمبر موجود تھا۔ میں اس کو کال کی تو اس نے میری کال دوسری بیل پر ہی اٹینڈ کر لی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی، کہنے لگی گھٹیا انسان، کم ظرف انسان، محبت کے دعوے تم نے میرے ساتھ کیسے، اور رشتہ میری بہن کا مانگ لیا؟ اس میں تمہیں ایسا کیا نظر آ گیا؟ کوئی اس کی جانب ایک نگاہ کر لے تو دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور تم ہو کہ اس کو بیوی بنانے لگے ہو۔ میں بولا شبو میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ امی سے کہا کہ تمہارا رشتہ مانگ کر آئیں اور وہ نیلو کر ہاتھ پر پیسے دھر آئی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنی بہن کو بتا دو ہمارے معاشقے کے متعلق وہ خود ہی اس شادی سے انکار کر دے تو اچھا ہے۔ شبو کہنے لگی ٹھیک ہے، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر میں نے اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے گھر میں کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ یہ میری طرف سے احتجاج تھا۔ مجھے لگا تھا کہ امی میرے دباؤ میں آ جائیں گی، مگر وہ تو بات مانتی ہی نہ تھیں۔ امی نے تو ابو کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ مجھے بھوک ہڑتال کیے ہوئے پورے 3 دن بیٹھ چکے تھے۔ آج امی اور ابو میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ابو کہنے لگے کہ افضل تم نے یہ کیا بچگانہ حرکت لگائی ہوئی ہے؟ جب تمہاری ماں تمہارا رشتہ نیلو کے لیے مانگ آئی ہے تو پھر تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ جہاں تمہاری ماں چاہتی ہے وہاں پر شادی کر لو۔ میں غصے میں بولا کہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اس کے والدین اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اب دیکھا جائے تو میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کیا ہے۔ امی نے میری پسند کو چھوڑ کر اسی گھر کی دوسری لڑکی کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی جواز سمجھ نہیں آ رہا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو امی کہنے لام لگی کہ بیٹا میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شبو کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں بولا آ اللہ، کیا ہو گیا ہے امی؟ اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب سے کس نے کہہ دیا کہ شبو کا کردار ٹھیک نہیں ہے؟ تو امی کہنے لگی کہ مجھے یہ سب نیلو نے بتایا ہے۔ میں شبو کا رشتہ مانگنے ان کے گھر جا کر بیٹھی تو میں یہ بات پہلے ہی نیلو سے کہہ دی تھی کہ میں آج شبو کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ تب نیلو نے میر احاطے پکڑا اور کہنے لگی خالہ آپ میری سب سے پیاری خالہ ہیں، میں آپ کو ایک بہت اندر کی بات بتانے جا رہی ہوں، اب کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیجیے گا۔ افضل تو بہت ہی اچھا اور معصوم سا لڑکا ہے، اس کے لیے شبو کا رشتہ نہ مانگیں کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ وہ ساری رات لڑکوں کے ساتھ فون پر بات کرتی ہے۔ تو میں چینچ پڑا اور بولا امی وہ لڑکوں کے ساتھ بات نہیں کرتی، وہ میرے ساتھ بات کرتی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ امی کہنے لگی کہ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ شبو اس گھر کی بہو نہیں بنے گی تو پھر نہیں بنے گی۔ مجھے اپنے گھر کے لیے ایک نیک پاک لڑکی چاہیے، بھی کیا ہوا اگر نیلو تھوڑی سانولی ہے مگر ہے تو وہ اچھی اور باکردار۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نیلو کے ساتھ آج تک کسی لڑکے نے فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ سب کے سامنے تلی بن کر پھرنے والی شبو جو ہے یعنی نیلو تمہاری بیوی جب بن کر آئے گی تو تمہارے لیے پاک صاف لڑکی بن کر آئے گی۔ میں ان کی باتیں سن کر کمرے سے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ابھی باہر گلی تک ہی گیا تھا کہ مجھے شبو کی کال آ گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ بولی میں نے اپنی زندگی میں آج تک تم جیسا گھٹیا انسان نہیں دیکھا۔ تم محبت کی قسمیں اور وعدے تو میرے ساتھ کرتے رہے مگر رشتہ میری بہن کے لیے بھیج دیا، مجھے تو گھن آتی ہے تم سے۔ افضل میں بولا شبنم اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے گھر سے تو امی کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجا، نہ جانے انہیں تمہارے گھر جا کر کیا سوجی کہ وہ تمہاری بہن کا رشتہ مانگ آئی۔ اب تم ہی کچھ کرو۔ میں تو امی کو سمجھا کے تھک گیا ہوں مگر ان کے کان پر تو جوں تک نہیں رینتی۔ ابھی ان سے ہی ناراض ہو کر گھر سے باہر نکلا ہوں۔ تم اپنی بہن کو سمجھاؤ اور ہم دونوں کے رشتے کے متعلق بتاؤ تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکے۔ شبو کہنے لگی ان ٹھیک ہے، اب مجھے ہی اپنی محبت بچانے
के लिए कुछ करना पड़ेगा तुमसे, तो मैं नाउमीद हो गई हूँ। मैं बोला नहीं नहीं उन ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी करती रहो। अब हर रोज उम्मी के साथ मेरी बहस होने लगी है थी। मैं उन्हें समझा समझा कर थक गई, मगर वो तो सुनती ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद मुझे शब्बो की कॉल आई थी। वो बोली मैंने नीलो को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो हम दोनों के रास्ते से इनहिट जाए, तो इसने मुझसे कहा कि मैं अफजल को शुरू से ही पसंद करती हूँ और अफजल से ही शादी करना चाहती हूँ। मैंने ही खाला को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, इसलिए वो मेरा रिश्ता मांग कर चली गई है। जब मैंने ये सब बातें सुने तो मैंने कहा ठीक है शब्बो, तुम नीलो की शादी मेरे साथ हो लेने दो, फिर इसको बताऊंगा कि मोहब्बत क्या होती है, फिर इसको पता चलेगा कि मुझे चाहने का क्या नुकसान है। मैं इसके साथ वो सलूक करूंगा कि इसको मोहब्बत से ही नफरत हो जाएगी। ये बात सुनकर शब्बो रोने लगी और कहने लगी कि तुम अपनी अना में आकर मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ धोखे मत करो। मैं बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगी। तुम्हारी बहन मेरे साथ कितना अरसा गुजार लेगी, 1 माह 2 माह, फिर वो ये घर छोड़कर चली जाएगी तो मैं इसे तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरे घर की और दिल की रानी बनूगी। शब्बो रोती रही थी और मिन्नतें करती रही थी कि ऐसे ना करो, मगर मैंने इसे कह दिया था कि फिक्र ना करो, ये रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। मैंने घर वालों से कह दिया कि ठीक है मेरी शादी की तैयारी की जाए, मगर मैं नहीं चाहता कि बहुत धूमधाम से ये शादी की जाए। मैं सिर्फ 2 तकरीबात चाहता हूँ, एक बारात और दूसर औलामा, और उन दोनों तकरीबात में भी निहायत गिने चने हुए लोग ही शामिल हों। उम्मी मेरी बात सुनकर तहाशा खुश हो गई थी, कहने लगी कि शुक्र है तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि वालिदैन कभी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। तुमने उन नीलों के साथ शादी पर रजामंद होकर बहुत अच्छा किया है। मैं चुप ही रहा था। खैर वो दिन भी आ गया कि नीलो मेरी बीवी बनकर मेरे कमरे में बैठी थी। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा मूड तहाशा खराब था। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया था। नीलो बेड पर बैठी कांप गई थी। मैंने गुस्से से इसका गेट पलटा था और उसकी आंखों में देखकर कहा तुमने मेरे और शब्बो के दरमियान आने की कोशिश क्यों की? तो नीलो की आंखें तेका अलग से कुन लग फजल, अब हमें दोनों मियाँ बीवी बन चुके हैं तो क्या ही बेहतर है कि आप अपने माजी को भूल जाएं और मुझे दिल से अपना ले। मैंने इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा और फिर जमीन पर थोप दिया था। मैंने कहा क्या मैं तुम्हें अपना लूं? तुम्हारी शक्ल है अपनाए जाने वाली, कभी तुमने आईना गौर से देखा है? मैं तो तुम्हें अनी मुलाजमा भी ना रखूं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी सार बीवी के तौर पर कबूल कर लूं। मुझे कल भी शब्बो से मोहब्बत थी और आज भी शब्बो से मोहब्बत है, मैं इसको अपना बना कर ही रहूंगा। तो नीलो रोने लगी थी। वो कहने लगी मेरे साथ इस कदर नफरत न करें, इतनी हिकारत न करें। शब्बो अलिफ छी लड़की नहीं है, मैंने तो अलिफ अब को धोखे से बचाया है क्योंकि अब एक शरीफ इंसान है। मैं बोला ये तो मैं तुम्हें आने वाले दिनों में बताऊंगा कि मैं किस कदर तशरीफ इंसान हूं। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया था कि सुबह हुई तो नीलो बहुत खुश नजर आ रही थी। इसको यही लग रहा था कि मैंने इसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खैर वलीमे की तकरीब हुई तो मैंने शब्बो से कह दिया था कि तुम मेरे घर रहने के लिए आ जाना। अब तुम्हारा बहाना भी है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर बहाई गई है। शब्बो तो जैसे तैयार ही बैठी थी, वो वलीमे के बाद हमारे ही घर आ गई थी। अबू ने अपनी मुलाजमत के सिलसिले में वापस सऊदिया जाना था, वो चले गए थे, तो अब घर में मेरी ही मर्जी चलती थी। उम्मी मेरे सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उम्मी को शब्बो का वजूद बहुत खुटक रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी साली यहाँ रहने क्यों आई हुई है, इसको यहाँ से चलता करो। यही तो दिन होते हैं जिसमें मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है। शब्बो कहाँ से आ गई कबाब में हड्डी बनकर? मैंने कंधे उचक्का अल दिए में बोला ये आपका और आपकी बहू का मामला है, जैसे करना है करें। इसने नीलो की नाराजगी के डर से कुछ नहीं कहा था। उम्मी अब मैं नीलो के सामने शब्बोसे के साथ बातें किया करता था, इससे मजाक किया करता था, तो नीलो हम दोनों को देखकर आहें भरती रहती थी। उसके कलेजे पर छुरियां चलती थी, इसकी आंखें हर बातें सूझी रहती थी। मुझे जरा बराबर भी नीलम के जज्बात की परवाह नहीं थी। वो 2 चाहने वालों के दरमियान आई थी, इसे सजा तो मलना ही थी। खैर शब्बो के जाने के बाद मैं नीलो का हाथ पकड़ लिया करता था। खैर एक दिन वो फट पड़ी थी। वो कहने लगी जब मुझसे मोहब्बत नहीं करते, दिन भर मुझसे बात नहीं करते तो मुझसे दूर रहा करे। मैंने इसे कहा था शादी करने की जल्दी तुम्हें ही थी, मैंने तो पैगाम भिजवाया भी था कि इसे रिश्ते से इनकार कर दो, मगर तुमने नहीं किया। अब तुम सजा भगतो, मैं तुम्हें भी अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं करूंगा। यूं ही हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन मैं काम से वापस आया तो देखा कि
नीलो और शब्बो की लड़ाई हो रही थी और नीलो शब्बो से कह रही थी कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया था। मैंने नीलम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैंने इससे कहा कि तुम कौन होती हो हमारे मेहमानों को घर से निकालने वाली। शब्बो सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं है बल्कि वो मेरी खाला की बेटी भी है और वो मेहमान बनकर हमारे घर आई है। तुम इसे घर से निकाल कैसे सकती हो? नीलोती हो। नीलो जाग उन फूट फूट कर रोने लगी थी और अपने कमरे में चली गई थी। ये खबर जब उम्मी तक पहुंची तो उम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। वो सीधा शब्बो के कमरे में गई, अलमारी खोली, इसके कपड़े पैक किए और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊं। मेहमान बस 1-2 दिन ही अच्छा लगता है, फिर जहमत लगने लगता है। तुम कोशिश करो कि जहमत बने से पहले ही रुखसत हो जाया करो। और फिर उम्मी शब्बो को इसके घर छोड़ती थी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने अब हर वक्त गुस्से में रहना शुरू कर दिया था। उम्मी ने मुझसे मेरी वाहिद खुशी भी छीन ली थी। खैर, मेरे सामने खाना पेश नून ना किया जाता तो मैं ट्रे उठाकर जमीन पर दे मारता था। अब मैं घर में खाना पीना छोड़ चुका था, ना उम्मी से बोलता था। खैर, नीलो से तो मैं पहले ही कलाम नहीं करता था। मेरे घर का माहौल बहुत अजीब हो गया था। नीलो भी अब बदल गई थी। इसने अपनी तकदीर को कबूल कर लिया था। वो मुझसे गिले शिकवे नहीं करती थी, हर वक्त मेरी खिदमत में लगी रहती थी। मैं बेड से उठने लगता तो वो मेरे पाँव में लाकर जूते पहना देती थी। पानी की तलब होती तो वो मेरे सामने गिलास हाजिर कर देती। नीज इसने अपनी जिंदगी बस मेरे लिए सिर्फ कर दी थी। उम्मी नीलम की तरफ देखकर मुस्कुराती और मुझसे कहती, क्या वो शबनम इतनी अच्छी बीवी साबित होती कभी? इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होने थे। मैं बोला, उम्मी काम के लिए तो मुलाजमा भी मिल जाती है मगर मनपसंद शख्स का कोई मोल नहीं होता। आखिर एक दिन में बाहर सह में लेटा हुआ था जब मेरे कानों में नीलो की आवाज पड़ी। वो उम्मी से कह रही थी, खाला अपने शब्बों को घर छोड़कर गलत किया, चली वो रह लेती यहाँ कुछ दिन। और वैसे भी वो कौन सा बहुत हया वाली है। उम्मी के घर जाकर भी तो वो यही सब करती है। कभी किसी लड़के को अपने पीछे लगा लेती है तो छोटिए, कभी किसी लड़के को उधर रहती तो अफजल का दिल लगा रहता। उम्मी गराकर बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या तुम अपने शौहर का दिल लगाने के लिए अपनी बहन पेश कर रही हो तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? मेरे दिमाग पर लबस भूत सवार हुआ था। मैं चाहता था किसी न किसी तौर पर शब्बो को हासिल कर लूं और अपनी बीवी को तलाक देकर शब्बो को अपनी बीवी बनाकर घर में रखो। उधर नीलो भी उदास रहती थी। मेरी नजरों में आने के लिए वो तरह तरह के जतन करती थीं। बेहतर से बेहतर लिबास पहनने की कोशिश करती थी। खुशबू लगा कर तुलिये की तरह मेरे अर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। मगर जब एक चीज दिल को ही अच्छी ना ले तो फिर सोने की बनकर भी अजाई तो अच्छी नहीं लगती। मुझे नीलो में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे हवासों पर तो शब्बो ही सवार थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि उम्मी ने सिफर मेरी शादी नीलो के साथ करवा कर मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे तो उम्मी की लॉजिक की समझ नहीं आती थी कि वो एक घर से वो लड़की बया कर ले आई जो मुझे नापसंद थी। अगर वो मेरी बात मान लेती तो उनका क्या चला जाना था। मैं नीलो के सामने सारी सारी रात शब्बो के साथ फोन पर बातें करता था। ये बात नहीं है कि मुझे नीलो का एहसास नहीं होता था। मुझे साफ पता चलता था कि वो रात भर रोती रहती है मगर मुझे इसके रोने की भी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन शब्बो का फोन आया था। वो बहुत रो रही थी। कहने लगी थी कि अफजल, अब मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती। मेरी घर वालों के साथ लड़ाई हुई है। तुम किसी तरह से भी आकर मुझे ले जाओ। मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ। मेरी भी यही हालत थी कि मैं शबनम को बहुत ज्यादा याद करता था। मैं चाहता था कि वो मेरी हो जाए। मैंने इससे कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अब मैं यही सोच रहा था कि मैं शब्बो को घर में कैसे बलाऊं। इसका हाल मैंने ये निकाला कि मैंने अपने एचबात के दरवाजे में ही तेल गिरा दिया। मुझे यकीन था कि जैसे ही नीलो बाथरूम में जाएंगी वो स्लिप होकर गिर जाएगी। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वही कुछ हुआ था जो मैंने सोचा था। नीलम जमीन पर गिर गई थी। इसको काफी चोट आई थी। नीलो फूट फूट कर रो रही थी। वो फरियाद कर रही थी, क्या अल्लाह तो ने मुझे आजमाइशों के लिए ही रखा है क्या? अगर मुझे इतनी आजमाइशें दुखाना थी तो मुझे पैदा ही ना करता। मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मैं नीलो को उठाकर बेड पर ले आया था। इसके रोने की आवाज सुनकर उम्मी भी हमारे कमरे में आ गई थी। वो कहने लगी कि मेरी बहू क्यों रो रही है? तो नीलो ने रोते हुए बताया कि मैं बाथरूम में स्लिप हो गई हूँ। उम्मी ने कहा कि इसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलूं। डॉक्टर को दिखाया तो इसने कहा पाँव पर मोच आई है, कुछ दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। उम्मी तो अब बूढ़ी थी, वो तो काम है तो बड़ा नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने जल्दी से शब्बो को फोन किया और कहा कि अपनी बहन की खैरियत मालूम करने आ जाओ, वो गिर गई है। इसके बाद तुमने ही घर का इंतजाम संभालना है। वो बहुत खुश हो गई, कहने लगी
کہ افضل आज साबित हो गया है कि तुम मुझसे 2-3 घंटों के बाद वो हमारे घर मौजूद मोहब्बत करते हो। खैर दो थी। उम्मी ने शब्बो को देखा तो वो गुस्से से कहने लगी कि तुम कैसे आई हो, तो वो बोली मुझे पता चला था कि मेरी बहन गिर गई है तो उसकी खैरियत मालूम करने आई हूँ। उम्मी ने तेवर दुखाकर कहा कि तुम्हें किसने बताया, तुम्हें कैसे हर चीज की खबर मिल जाती है? तो मैं बेबाकी से बोला कि मैंने बताया है। आपको पता तो है कि मैं और शब्बो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हम दोनों का राब्ता आज भी पहले की ही तरह है। ये बात मैंने सर आम कही थी। मैं नीलो का दिल जलाना चाहता था जिस तरह इसने मीर अदल जलाया था। वो मेरे और शब्बो के रिश्ते में कांटा बनी थी। इसने हम दोनों को एक होने से रोका था। उम्मी गुस्से से बोली कि चिल्लू अफजल तो लड़का है, वो तो बेहया है, इसमें तो शर्म लिहाज खत्म हो चुका है। मगर शब्बो क्या तुम भी बेगैरत हो गई हो? तुम्हें नहीं पता कि वो अब तुम्हारी बहन का शौहर है और अपनी बहन के शौहर के साथ तुम्हें राब्ता रखते हुए शर्म नहीं आती क्या? तो शब्बो खामोशी से सब कुछ सुनती रही थी। वो अपने मुंह से सुनती रही थी, वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोली थी। मैं बोला उम्मी मैंने शबनम को आपके लिए बुलाया है, आपकी तबीयत खराब रहती है। अब तो आपकी बावरानी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है, तो घर के काम कौन करे? अब तो नहीं कर सकती ना। तो उम्मी कहने लगी कि मैं किसी पड़ोसन को बुलाकर काम करवा लेती। तुमने इसे इस लड़की को क्यों बुलाया? बुलावा लेती तुम है चिल्लू। शब्बो बेटा चिल्लू आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। शब्बो बोली आंटी मैं इतना ज्यादा सामान पैक करके आई हूँ, अभी घर चली जाऊंगी तो अबू को शक हो जाएगा, वो नाराज होंगे। लाके मुझे इतनी जल्दी घर वापस क्यों भेज दिया गया है? कम अज कम अब मुझे एक दिन के लिए तो यहाँ रहने दें, कल मैं फिर खुद ही चली जाऊंगी। उम्मी ने कहा ठीक है, बात अब तुम्हारे बाप की है तो मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देती हूँ, मगर एक दिन से ज्यादा तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। तो शब्बो कहने लाम दिन से लगी ठीक है आंटी, जैसा अब कहेंगी वैसे ही हो गा। मैंने मोबाइल पर वक्त देखा तो दोपहर का 1 बज चुका था। उम्मी ने शब्बो को किचन में मसरूफ करना चाहा था, इसलिए कहा कि चावल बना दो। खुद वो अपने कमरे में चली गई थी। मैंने शब्बो से कहा कि तुम छोड़ो कि ये घर के काम काज, आ जाओ हम दोनों सैर करके आते हैं, वापसी पर घर के लिए कुछ ले आएंगे। शबनम फौरी तौर पर राजी हुई। अलथी थी मैं और शबनम ने अच्छे से होटल में खाना खाया था। फिर मैंने शबनम से कहा कि मैंने इसी होटल में कमरा बुक करवाया हुआ है, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल गुजारना चाहता हूं। तो शबनम कर नट खाकर उठकर खड़ी हुई थी। वो कहने थी नहीं नहीं ये सब गलत है, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूं, मगर शादी से पहले मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगी। तुम मुझे अभी घर ले जाओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। शबनम की बात सुनकर मेरा कोई मूड खराब हो गया था कि मैंने सिर्फ उसके लिए ये सब किया, अपनी बीवी को भी नीचे गिरा दिया। और अब वो मेरे साथ कमरे में जाने के लिए रजामंद नहीं थी। तैयारी तो मैं पहले ही कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि अगर शबनम इनकार करेगी तो मैं दूसरा रहरबा आजमाऊंगा। मैंने शबनम से सिफर कहा ठीक है बाबा नाराज ना हो, हम बस चाय पी के घर चलते हैं। मैं चाय लेने के लिए उठा और फिर इसमें नींद की दवा लम्स कर दी थी। वो पीते ही शबनम को नींद आ गई थी। मैंने इसको सहारा दिया और होटल के कमरे में ले गया था। मुझ पर इस वक्त मुकम्मल पर शैतान हावी हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज मैं शबनम को हासिल करके ही रहूंगा, मगर मैं जैसे ही शबनम के करीब हुआ तो मैं करंट खाकर पीछे हटा था, क्योंकि वहां तो मैं शबनम को बेसिफर यकीनी से देखता रहा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। मैं आधा घंटा तो मिलने जलने की भी हालत में नहीं था। फिर मैंने हिम्मत की और शबनम को सहारा देखकर गाड़ी में बिठाकर वापस घर ले आया था। मैंने उम्मी से कहा कि ये मेरे साथ खाना खा रही थी, ना जाने कैसे बेहोश हो गई है। उम्मी कहने लगी तो इसको डॉक्टर के पास ले जाते, घर क्यों ले आए हो? तो नीलम डर गई थी। वो कहने लगी नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। इसने उम्मी से कहा कि खाला इस पर पानी के छींटे डालें। उम्मी ने पानी का पूरा जुग शबनम के मुंह पर उंडेल दिया था। तब कहीं जाकर इसे होश आया था। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी अफजल मुझे क्या हुआ था? मैंने कहा पता नहीं, तुम चाय पीते हुए बेहोश हो गई थी। शबनम ने सर अलिफ बिला दियो। कहने लगी हमें कमजोर हो गई हूं तुम्हारी जुदाई का दुख बर्दाश्त करते करते, इसलिए ही ऐसा हुआ है। मैं उम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बाहर ले गया था। मैं उम्मी से कहा कि जिस कदर जल्दी इल्ला मुमकिन हो सके शबनम को यहाँ से भेज दें। उम्मी बड़ी हैरान हुई कि आखिर ये सब किया है। उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा अपने सर पर रखकर कहा मुझे सच सच बता दे, तुमने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अलिफ मैंने उम्मी के सर की किस्म खाकर कहा कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, अब बस इस लड़की को इसके घर छोड़ आए। उम्मी कहने लगी कि ठीक है मैं ही इसको अपने साथ ले जाती हूँ। मैंने उम्मी को टैक्सी मंगवा दी थी। उम्मी ने शबनम को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था, जबकि शबनम तो मुझे मदद तलब नजरों से देखती रही थी। इस
ने एहतजाज भी किया था। उम्मी से भी कहा कि आंटी मुझे रुकने दें, मुझे भी रू रू कर दिखाती रही थी, मगर मैं चुपचाप छत पर चला गया तो उम्मी इसे अपने साथ ले गई थी। जब मैकनी रवाना हो गई तो मैं वापस नीचे आया था। मीर है, सामने नीलम बैठी थी। मैंने नीलम से कहा कि तुम मेरे और शबनम के रिश्ते में क्यों आई थी, तो फिल्म रोने लगी। इसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे मुआफ कर दी। मैं बोला नहीं, मुझे सब कुछ सच जाना है दिए और बुतो इसकी वजह किया थी। तो नीलम कहने लगी कि शबनम अच्छी लड़की नहीं है, वो लड़कों के साथ मलती जलती भी रहती है, मगर आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा क्योंकि आपको भी शबनम ही सच लगती है। मैं बोला तुम ये सब कुछ इतने वसूख से कैसे कह सकती हो, तो नीलम कहने लगी कि मैंने नीलम को अपने घर की छत पर मोहल्ले के लड़के के साथ देख लिया था, मैंने शबनम को मारा भी था। तब इसने मुझे बताया था कि मैं अपने मोहल्ले के लड़के जमील के बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब मैं इसको शादी के लिए मिना रही हूं, मगर जमील मानता नहीं है। इसने मेरी भी मिन्नतें की हमद थीं कि तुम कुछ भी करके मेरी शादी जमील से करवा दो, मगर वो लड़का हाथ नहीं आया। इसने तो शबनम से कह दिया था कि अगर तुमने मीर अनाम किसी के सामने लिया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। शबनम डर के पीछे हट गई थी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। डर थी और तुम्हें दिन रात कहने लगी कि मुझसे शादी करो। तुमने भी इसकी बातों में आकर अपना अरशत्ता भेज दिया था, मगर मैं ये शादी नहीं होने देना चाहती थी। वो तो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी, तो फिर वो आपको धोखे कैसे दे सकती थी कि आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इससे कहा नीलम तुम सच कह रही हो, आज मैंने होटल में शबनम को जरा करीब से देखा तो इसका अलिफ पेट नजर आया, वो तो नौमा की हामला लगती है। तो फिल्म कहने लगी है हाँ फजल यही तो बात है, वो यहाँ पर अपना बच्चा जनने के कुलिये लिए आई थी। इसको डर है कि अगर वो घर में बच्चा जनेगी तो अबू इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने नीलम के आगे हाथ जोड़ दिए और इससे मुआफी मांग ली थी। मैंने कहा कि मुझे मेरी हर ज्यादती के लिए मुआफ कर दो। वो मुस्करा दी थी मगर मुझसे कुछ भी ना बोली। कुछ लाम रोज गुजरे तो नीलम की तबीयत खराब हो गई थी। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो हामला है। नीलम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, वो मेरे निकाह में थी, वो मेरी इज्जत थी, वो एक अच्छी लड़की थी। क्या हुआ कि अगर जरसी सांवली थी मगर थी तो शरीफ ना। अब मैं सोचता हूँ कि उम्मी ने मेरी शादी नीलम के साथ करवाकर बहुत अच्छा किया है। मैं एक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी क्यों बताता जो किसी और के गुनाह अपने पेट में रख कर फिर रही है। मेरे लिए तो ये लड़की ही बेहतर है, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है।